Hello guys, in this lecture we will understand the program for n-queen problem. So in n-queen problem we have I consider a small example to understand the n-queen problem. We have a 4 cross 4 matrix or 4 cross 4 chessboard, and I have to place 4 queens in this chessboard so that no 2 queens can attack each other. So as per the assumptions as we discussed in the last lecture, we have assumed that each queen is placed to a particular row only. So we are not placing the 2 queens in the same row. So for the assumptions, q1 is placed into the first row, q2 is placed in the second row, q3 is placed in the third row, and q4 is placed in the fourth row. So the solution array or the output of the backtracking problem or using n-queen problem using backtracking will generate the column numbers, means in which column the q1 is placed or in which column the q2 is placed. We already know the row number, as in the first row the q1 is placed, बट फर्स्ट रो में कौन से कॉलम में जाएगा वो हम इस सॉल्यूशन एरे में हम अपडेट करते हैं. ओके, सो दिस सॉल्यूशन एरे कैसे हम अपडेट करते हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में भी एक बार देखा था बैक ट्रैकिंग के थ्रू. नाउ in this lecture we just see the program how we can develop the recursive procedures and then try to hard run the program here only. So we have write a function named as nq, and in this function nq we pass 2 arguments. One is the row number and other is the total number of queens which are to be placed. So here row represents that which in which row we are going to place the queen, or we can say that row also represent that for which queen we are going to find a place. Both are same thing, because for first row only first queen can be placed, and so that so we can say that if we are talking about the first queen, it means we are talking about the first row. Okay, now n is the total number of queens that can be placed. So we call this procedure based on 2 parameters. Then we initialize a column variable inside the procedure only, because for each row the column variable must be different. So it is a local variable. And how many columns are there? The same number of columns. We have 4 columns. So the for loop starts from 1 to 4, means for each column we are going to we are gonna check whether we can place the queen or not. Then in the if condition we check whether safe, there is a safe function which will tell you that whether if you are eligible to place the queen in that row, in the row number 1 or 2 or 3, and in that row some particular column number 1, 2 or 3, and if it is safe then you have to place that queen. So सॉल्यूशन ऑफ रो मीन्स अगर आपके पास फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं तो Q1 का जो प्लेसमेंट होगा वो कहाँ पे होगा, उस कॉलम में होगा जिसके लिए कंडीशन ट्रू हुई है. ओके, सो वो वाला कॉलम हमने इस सॉल्यूशन एरे में अपडेट कर देना है. जैसे ही हमारे सारी क्वींस प्लेस हो जाती हैं, इफ़ रो इज इक्वल टू n, मीन्स आपके पास रो की वैल्यू 4 आ जाती है और 4 ही हमारे पास टोटल क्वीन है, n की वैल्यू भी 4 है इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, तो हम सॉल्यूशन को प्रिंट करेंगे. सॉल्यूशन को प्रिंट करने का प्रोसीजर अभी हमने नहीं लिखा है, आई विल डिस्कस आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस वन. और जब तक आपका रो पूरा नहीं हुआ, मतलब सारी आपके रो मीन्स कि ऑल नंबर ऑफ रोज आर नॉट कवर्ड, तो वी हैव टू कॉल दी nq फंक्शन अगेन ऑन सेकेंड रो. अगर आपने फर्स्ट रो पे, जैसे ही आपको फर्स्ट रो पे प्रोसीजर कॉल कर लिया और प्रोसीजर कॉल करने के बाद इसमें सारी रोज़ कवर नहीं हुई हैं, तो आप उसको सेकंड रो पे प्लेस करेंगे, फिर थर्ड रो पे, एंड सो ऑन. सो दिस इज़ अ रिकर्सिव कॉल. सो इस nq फंक्शन के अंदर जो मेनली 3 हमारे प्रोसीजर्स हैं, पहला हमें सेफ प्लेस ढूंढना है हर एक कॉलम के लिए. अगर सेफ प्लेस मिलता है देन ओनली वी गो इनसाइड द लूप एंड अपडेट द सॉल्यूशन एरे, एंड ऑल्सो कॉल दी nq फंक्शन ऑन द नेक्स्ट रो. दूसरी क्वीन के लिए हम प्लेस ढूंढेंगे, एंड दिस इज कैरी ऑन. कब तक कैरी होगा ये? जब तक आपकी टोटल रो नंबर इज इक्वल टू n नहीं हो जाता और सारे कॉलम्स में वो सर्च नहीं हो जाता, तब तक हम इसी को रिकर्सिवली चेक करते जाएंगे.
Okay, then the next because we have three main key parameters in NQ function. सबसे पहला की पैरामीटर है सेफ फंक्शन, तो सेफ फंक्शन को समझ लेते हैं। सेफ फंक्शन में हमने दो आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, रो और कॉलम। रो के लिए सेफ फंक्शन का मतलब है कि आपकी क्वीन जो आप प्लेस कर रहे हैं, जैसे कि जिस रो में भी प्लेस कर रहे हैं उस पर कोई और क्वीन तो अटैक नहीं कर रही है। तो उसके लिए हम क्या चेक करते हैं, वी हैव टू चेक, सारी की सारी रो के हिसाब से हमें चेक करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट रो में चेक कर रहे हैं तो ये फॉर लूप चलेगा ही नहीं, बट सेकंड रो से अगर आप चेक कर रहे हैं तो ये फर्स्ट रो में प्लेस हुई क्वीन से चेक करेगा। अगर थर्ड में हमें चेक करना है तो पहली दो रो में जितनी भी आपने क्वीन प्लेस की है उन सबसे चेक करेगा कि कंडीशन तो कोई वॉयलेट नहीं हो रही। तो जैसे एन क्वीन प्रॉब्लम में हमारी मेनली क्या क्या कंडीशन होती है, रो वाली कंडीशन आएगी नहीं, तो कोई भी क्वीन हम सेम रो में प्लेस नहीं कर रहे। तो पहली कंडीशन है कि दो क्वीन सेम कॉलम में नहीं आनी चाहिए और डायगोनल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे जो सॉरी, हाँ, आई थिंक इट इज़ विजिबल। हाँ, तो सेफ फंक्शन के अंदर हमारे पास रो और कॉलम है, उसके अंदर हमने फॉर लूप लगाया हुआ है फॉर आई इज इक्वल टू 1 टू रो माइनस वन। रो माइनस वन का मतलब समझ में आ रहा होगा, अगर हम इस वाली रो की बात कर रहे हैं तो उससे पहले वाली रो तक हम चेक करेंगे। ठीक है, ये वाली जो कंडीशन है सॉल्यूशन ऑफ आई, सॉल्यूशन ऑफ आई मतलब जो पहली रो में पहली रो के लिए मतलब पहली क्वीन का प्लेस कहाँ है। सॉल्यूशन ऑफ आई में हम क्या रख रहे हैं, कॉलम नंबर्स रख रहे हैं कि पहली क्वीन किस कॉलम में है, दूसरी क्वीन किस कॉलम में है, तीसरी क्वीन किस कॉलम में है। तो अगर ये सॉल्यूशन जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है और जिस रो के लिए भी हम बात कर रहे हैं, जिस क्वीन के लिए भी हम बात कर रहे हैं, वो आपके द्वारा पास किए गए कॉलम के इक्वल है, तो मतलब दोनों के कॉलम सेम है, जो हम पास करा रहे हैं, जिसको हम प्लेस करना चाहते हैं और जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सो सेम कॉलम के लिए हमने ये कंडीशन रखी हुई है, अगर दोनों कॉलम सेम हो। ठीक है, नई क्वीन की और जो पुरानी प्लेस्ड क्वीन है उनकी। तो अगर ऐसा है तो वी विल रिटर्न जीरो। अगर यहाँ पे ज़ीरो रिटर्न होगा तो हम इस फॉर लूप के अंदर नहीं जाएंगे, सॉल्यूशन अपडेट नहीं करेंगे। देन दीज कंडीशंस इज सॉल्यूशन ऑफ आई माइनस कॉलम अगर इक्वल होगा आई माइनस रो के। ये दोनों कंडीशन आपकी जो है, अगर ये ऐसा होगा तो आपके पास जो इंडिसेस हैं रो और कॉलम वो डायगोनल इंडिसेस हैं। ये कंडीशंस हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि डायगोनल का कैसे पता लगाएंगे। सो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो एक बार पिछला वीडियो ज़रूर देखें। इसमें सो दिस कंडीशन इज़ फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, कि डायगोनल एलिमेंट्स कैसे डिटेक्ट होंगे। और अगर डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल सेल है ये वाला जिसमें आप प्लेस कर रहे हैं रो कॉलम, तो भी आपको क्या रिटर्न कर रहा है, जीरो रिटर्न करना है, तो भी हम इसके अंदर प्लेस नहीं करेंगे। अदरवाइज अगर ना तो वो सेम कॉलम में है ना ही वो डायगोनल है, तो फिर ये फॉर लूप से बाहर आएगा सारे चेक करने के बाद और रिटर्न कर देगा वन। रिटर्न वन करने के बाद हमें सॉल्यूशन को अपडेट करना है। ठीक है, सो जनरली वी हैव टू मेन प्रोसीजर्स ओनली। तो हमने देख लिया कैसे हैं। एक एनक्यू वाला प्रोसीजर है जिसके अंदर हम सॉल्यूशन एरे को अपडेट करेंगे, और सॉल्यूशन एरे को अपडेट करने के लिए हमें हमेशा क्या ध्यान रखना है, सेफ प्रोसीजर पे ध्यान रखना है। और सेफ प्रोसीजर को हमने क्या चेक करना है कि जो नया रो और कॉलम आया है वो सेम डायगोनल या फिर डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल सेल तो नहीं है या फिर सेम कॉलम में तो नहीं है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें चेक करनी है। ओके, सो चलिए इसको एक बार हार्ड रन करके देखते हैं तो ये और अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करेगा। सो फॉर रो इज इक्वल टू 2, कॉलम इज इक्वल टू 4, वी नीड टू चेक द सेफ 2 4। तो सेफ 2 4 में हम आएंगे तो एक ही बार ये लूप चलेगा क्योंकि रो नंबर हमारा 2 है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे वेदर सॉल्यूशन आई मतलब फर्स्ट पोजीशन पे जो कॉलम है 1 इज़ इक्वल टू कॉलम नंबर है या नहीं, तो कंडीशन फॉल्स होती है। दूसरी कंडीशन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए हम चेक करेंगे वेदर आई माइनस कॉलम इज इक्वल टू आई माइनस रो एंड रो नंबर इज़ 2, सो इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। 1 रिटर्न करने का मतलब है कि हम इफ़ कंडीशन के अंदर जाएंगे और चेक करेंगे कि वेदर सॉल्यूशन ऑफ ये अपडेट करेंगे कि इसमें सेकंड सॉल्यूशन ऑफ रो मतलब रो वन सेकंड रो की बात हो रही है, उसमें हम कॉलम अपडेट कर देंगे 4। ओके, यहाँ पे हम कॉलम अपडेट कर देंगे 4
और उसके साथ साथ हम चेक करेंगे वेदर रो इज इक्वल टू एन और नोट। सो रो नंबर है 2, एन की वैल्यू 4, कंडीशन फॉल्स। फिर से हम एन क्यू कॉल करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एन क्यू ऑन 3,4। तो थर्ड क्वीन के लिए हमें चेक करना है, ठीक है। सो थर्ड क्वीन के लिए हमें फिर से चेक करना है। सो वी आर गोइंग टू कॉल एन क्यू ऑन 3,4। सो 4 केसेस हमें इसमें कॉल करने पड़ेंगे कॉलम नंबर 1 के लिए, कि थर्ड रो में जो क्वीन हमें प्लेस करनी है वो पहले कॉलम में करनी है या दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। तो उसके लिए 4 केसेस, डिफरेंट केसेस हम यहाँ पे कॉल करेंगे इस फॉर लूप के अकॉर्डिंग, ठीक है। DFS है, 1 बाय 1 चलते हैं। सबसे पहले कॉलम नंबर 1 सेफ कॉल करेगा 3,1 पे। क्या हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे हम प्लेस वैसे तो नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय Q1, दिस कॉलम इज़ ऑक्यूपाइड बाय Q1। तो फिर हम चेक करते हैं, ये इसमें सेफ के अंदर हमारी रो और कॉलम अपडेट हो जाएंगे। तो रो नंबर चल रही है आपकी 3 और कॉलम नंबर चल रहा है आपका कौन सा? फर्स्ट, ठीक है। रो नंबर 3 है, तो आई की वैल्यू अब यहाँ पे क्या होगी? आई इज इक्वल टू 1 के लिए और 2 के लिए, दोनों के लिए चेक करेंगे, क्योंकि फॉर आई इज़ लेस दैन और इक्वल टू रो -1 तक हमें चलना होता है। तो जब आई इज़ इक्वल टू 1 होगा तब सॉल्यूशन ऑफ आई में 1, और कॉलम नंबर हमारा क्या है? कॉलम नंबर भी 1 ही है, तो 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। कंडीशन ट्रू, ये तो यहीं पे रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो लूप को दोबारा चलने की आवश्यकता ही नहीं है, यहीं पे रिटर्न हो जाएगा और ये बाउंडेड फंक्शन में 0 रिटर्न कर देगा। उसके बाद 3,2 के लिए चेक करेंगे। 3,2 का मतलब इन दिस सेल वी आर गोइंग टू प्लेस इट। तो 3,2 में हम प्लेस कर सकते हैं, कोई कोलिजन नहीं है, इसके थ्रू भी हम चेक कर लेते हैं। 3,2 में कॉलम नंबर अपडेट हो गया 2, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि सेम कॉलम में नहीं है। डायगोनली चेक कर लेते हैं, तो डायगोनली में आई इज इक्वल टू 1 जब होगा तब कॉलम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ आई कितना होगा? 1, और कॉलम नंबर चल रहा है हमारा सॉरी 1 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 1 माइनस एंड रो नंबर चल रहा है 3। सो ये फॉल्स है। सो दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होने के बाद ये रिटर्न कर देगा 1, ठीक है। सो 1 रिटर्न करने का मतलब है वी नीड टू गो इनसाइड द लूप। सो थर्ड 1 रिटर्न किया यहाँ पे इनसाइड द लूप सॉल्यूशन ऑफ रो। थर्ड वाले का सॉल्यूशन कॉलम नंबर जाएगा, कॉलम नंबर है हमारा 2। तो यहाँ पे हम थर्ड वाले को क्वीन को प्लेस कर चुके हैं। अब 3,2 के लिए फिर हमें अभी रो नंबर पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं एन तक। सो हमें एन क्यू फिर से हमें कॉल करना पड़ेगा ऑन 4,4, ठीक है। फोर्थ रो के लिए हम चेक कर रहे हैं, अब फोर्थ रो के लिए हम चेक कर रहे हैं। तो फिर से हमारे केसेस बनेंगे जब कॉलम इज इक्वल टू 1 होगा, फोर्थ रो में कॉलम इज इक्वल टू 1 होगा तो सेफ फंक्शन कॉल होगा ऑन रो नंबर 4 कॉलम नंबर 1। ओके, सो यहाँ पे हम सीधी सी बात है 4 अगर आपका रो नंबर है तो आई की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 होगी, 3 बार चलेगा ये लूप, 3 बार चलेगा अगर ये रिटर्न नहीं होता है तो। रो नंबर आपकी 4 हो चुकी है अब और कॉलम नंबर हो चुका है 1। तो सॉल्यूशन ऑफ आई मतलब आई इज इक्वल टू 1 के लिए हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ आई 1 होगा और कॉलम नंबर है हमारा 1, दोनों इक्वल है तो हम प्रिविलेज नहीं कर सकते, बाउंडिंग फंक्शन लग गया है। कॉलम इज इक्वल टू 2 के लिए चेक करेंगे सेफ फंक्शन 4,2 मतलब यहाँ पे इस पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 4,2 मतलब सेकंड वाले के लिए ये वॉयलेट होना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं वॉयलेट होता है कि नहीं। अगेन सो कॉलम नंबर इज़ नाउ अपडेटेड टू 2। पहला तो ये है कि 1 आपका आई इज इक्वल टू 1 जब होगा तो 1 इज इक्वल टू 2, इट इज़ नॉट ट्रू। सो गो टू एलसिफ पार्ट। सो यहाँ पे आपका रहेगा सॉल्यूशन ऑफ आई 1 माइनस कॉलम नंबर कितना चल रहा है 2 इज इक्वल टू 1 माइनस रो नंबर कितना चल रहा है 4, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो आई इज इक्वल टू 1 के लिए तो दोनों फॉल्स हो गए। अभी लूप टर्मिनेट नहीं होगा, फिर से लूप में जाएंगे, आई इज इक्वल टू 2 के लिए चेक करेंगे। जब आई इज इक्वल टू 2 है तो सॉल्यूशन ऑफ आई कितना हो गया 4, ओके। एंड कॉलम नंबर कितना है हमारे पास 2, तो 4 इज़ नॉट इक्वल टू 2, कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई। और यहाँ पे डायगोनल के लिए चेक करेंगे, तो डायगोनल के लिए कैसे चेक करेंगे 1 माइनस यहाँ पे सॉरी सॉल्यूशन ऑफ आई हो गया 4, तो 4 माइनस कॉलम नंबर कौन सा चल रहा है 2 इज इक्वल टू आई, वैल्यू ऑफ आई इज़ 2 एंड रो नंबर कौन सा चल रहा है, सो रो नंबर इज़ 4, सो 4 माइनस 2 2 माइनस 4। सो यहाँ पे ये डायगोनल एलिमेंट आ गया है। सो डायगोनल एलिमेंट का मतलब
रिटर्न 0 कर देगा ये, तो यहाँ पे भी हम 4 2 में प्लेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम 4 2 में प्लेस नहीं कर सकते हैं। चेक फॉर अनदर कॉलम नंबर 3। सो 3 के लिए चेक करेंगे। 3 में आपका आ जाएगा सेफ 4,3। 4,3 का मतलब फिर से कॉलम नंबर अपडेट हो गया, ओके। ये सॉरी, सो यहाँ पे हम फिर से चेक करेंगे। आई इज इक्वल टू 1 2 3 3 कंडीशन है, रो नंबर 4 है, कॉलम नंबर 3 है, ठीक है। सो सॉल्यूशन ऑफ आई, सो 1 आई इज इक्वल टू 1 जब होगा तो सॉल्यूशन ऑफ आई कितना होगा 1 इज इक्वल टू कॉलम नंबर चल रहा है 3, सो इट इज़ नॉट ट्रू। डायगोनली के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉलम नंबर चल रहा है 3 इज इक्वल टू रो नंबर है 1 माइनस आई की वैल्यू है 1 और रो नंबर चल रहा है आपका 4। सो 1 माइनस 3 और 1 माइनस 4 इक्वल नहीं हो सकते, कंडीशन फॉल्स। सो फिर से आगे चलते हैं आई इज इक्वल टू 2 के लिए। आई इज इक्वल टू 2 होगा तो सॉल्यूशन की वैल्यू होगी 4 और कॉलम नंबर है आपका 3, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। सॉल्यूशन की वैल्यू है 4 माइनस कॉलम नंबर है 3 इज इक्वल टू आई माइनस रो, आई की वैल्यू चल रही है 2 माइनस रो की वैल्यू चल रही है आपकी यहाँ पे 4, ओके। सो 4 माइनस 3 2 माइनस 4 इट इज़ नॉट ट्रू, फॉल्स हो गया ये भी। नेक्स्ट हम चलते हैं 3 के लिए। सो 3 के लिए चेक करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ 3 इज 2, सो 2 इज इक्वल टू कॉलम नंबर चल रहा है हमारा 3, सो इट इज़ नॉट ट्रू। डायगोनल में चेक करेंगे, डायगोनल में चेक करना है तो 2 माइनस कॉलम नंबर चल रहा है 3 इज इक्वल टू आई वैल्यू इज 3 माइनस रो वैल्यू इज 4, सो 2 माइनस 3 माइनस 4, यस इट इज़ इक्वल। सो डायगोनल एलिमेंट डिटेक्ट हुआ यहाँ पे। सो यहाँ पे हम अगर करेंगे तो इसके डायगोनल में है, तो इसलिए यहाँ पे ये रिटर्न कर देगा 0। सो ये भी फॉल्स हो गया था, ये भी फॉल्स हो गया है। नाउ नेक्स्ट इज कॉलम इज इक्वल टू 4, तो भी हम चेक करेंगे सेफ ऑन 4,4। तो सेफ ऑन 4,4 भी आपका यहाँ पे, क्योंकि 4,4 ऑलरेडी फोर्थ कॉलम में Q2 है, सो ये भी बाउंडिंग फंक्शन रिटर्न करेगा और पॉप आउट हो जाएगा। सो फोर्थ वाली क्वीन के लिए हमें कोई भी अप्रोप्रिएट प्लेस नहीं मिला है। सो जब ये पूरा का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे आएगा कंट्रोल आपका, और यहाँ पे कंट्रोल आने के बाद ये प्रीवियस रिटर्न करेगा। तो प्रीवियस फंक्शन में जहाँ से ये कॉल हुआ था, कहाँ से कॉल हुआ था, ये सेफ 3 2 से कॉल हुआ था, हमारा कंट्रोल यहाँ पे जाएगा एंड वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट नाउ सेफ 3,3। सो कैन आई प्लेस माई थर्ड क्वीन इन द थर्ड सेल, सो सेफ 3,3, लेट्स चेक। 3,3 का मतलब है आई की वैल्यू आपकी रहेगी 1 और 2 के लिए चलेगा केवल ये लूप, और सॉल्यूशन ऑफ आई का मतलब सॉल्यूशन ऑफ आई कितना है 1 इज इक्वल टू कॉलम नंबर चल रहा है आपका कितना अभी, कॉलम नंबर इज 3, 1 इज इक्वल टू 3, नो इट इज़ नॉट। सो नेक्स्ट डायगोनल के लिए चेक करेंगे हम यहाँ पे, डायगोनल के लिए चेक करेंगे। सो डायगोनल में रहेगा 1 माइनस 3 इज इक्वल टू आई वैल्यू 1 है माइनस रो वैल्यू इज 3। सो ये डायगोनल वाली कंडीशन ट्रू हो गई। अगर डायगोनल वाली कंडीशन ट्रू हो गई इट मीन्स इट विल रिटर्न फॉल्स, तो यहाँ पे हम फॉल्स रिटर्न कर देगा, 0 रिटर्न कर देगा, बाउंडिंग कंडीशन है। तो हम वापस से बैक ट्रैक करेंगे और नेक्स्ट कॉलम के लिए चेक करेंगे Q3 को हम क्या यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं क्या, 3,4। सो नाउ रो इज़ 3 कॉलम इज़ 4 एंड आई इज इक्वल टू 1,2। सो वेदर 1 इज इक्वल टू 4, नो इट इज़ नॉट। वेदर नेक्स्ट इज ओके सॉरी, सॉल्यूशन ऑफ आई, व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ आई, आई वैल्यू 1 है तो 1 ही रहेगा सॉल्यूशन ऑफ आई, 1 इज नॉट इक्वल टू 4, ओके एंड देन 1 माइनस 4 इज इक्वल टू, हम चेक कर रहे हैं आई माइनस रो से, तो आई की वैल्यू है 1 माइनस रो की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3। सो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। हमने वापस गए आई इज इक्वल टू 2 के लिए चेक करा, 2 पे जो वैल्यू है वो 4 है, 4 इज इक्वल टू 4, यस इट इज़ ट्रू, 4 इज इक्वल टू 4।
सो 4 का मतलब है कि कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब हम यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि ये 0 रिटर्न कर देगा। सो सेफ 3,4 भी बाउंडिंग फंक्शन के थ्रू आपका 0 रिटर्न कर रहा है। सो आई कैन नॉट प्लेस अब कैन नॉट फाइंड द अप्रोप्रिएट प्लेस फॉर द थर्ड क्वीन ऑल्सो। तो थर्ड क्वीन को मुझे पॉप आउट करना पड़ेगा। सो ये वाला जो फंक्शन हमने बनाया है इसको हम पॉप आउट करते हैं, कंट्रोल गोज टू सेकंड क्वीन, सेकंड रो, एंड उससे अगले वाला हमें एक्सप्लोर करना है। सो आई कैन नॉट मूव इट फर्दर, सेकंड क्वीन अपने ऑलरेडी लास्ट सेल में जा चुकी है। सो यहाँ पे लूप ये कंप्लीट हो चुका है कॉलम नंबर। जब लूप कंप्लीट हो चुका है तो एन क्यू का ये 2,4 का स्टैक में कंप्लीशन हो गया है। सो आई हैव टू रिमूव दिस वन ऑल्सो, हैव टू रिमूव दिस वन ऑल्सो एंड एग्जीक्यूट द कोड फॉर कॉलम इज इक्वल टू 2। सो ये भी हम यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे कॉलम इज इक्वल टू 2, फर्स्ट क्वीन को कॉलम इज इक्वल टू 2 के लिए चेक करेंगे। सो कॉलम इज इक्वल टू 2 के लिए हम चेक कर रहे हैं। कॉलम इज इक्वल टू 1 के में हमें कोई भी अप्रोप्रिएट प्लेस नहीं मिला। सो वी मूव टू कॉलम इज इक्वल टू 2। एक पूरा पर्टिकुलर डेप्थ हमें कवर कर लिया, ब्रेथ की तरफ बढ़ रहे हैं। सो DFS अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं। सो सेफ 1,2, सेफ 1,2 का मतलब यहाँ पे हम आएंगे 1,2 का मतलब है कि ये फर्स्ट टाइम ये लूप नहीं चलेगा क्योंकि रो वैल्यू 1 है तो ये लूप नहीं चलेगा। सो ये रिटर्न्स 1, तो इसका मतलब हम यहाँ पे डायरेक्टली प्लेस कर देंगे पहली क्वीन को, ठीक है। और इनसाइड जाएंगे तो यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे दिस वैल्यू इज अपडेटेड एट सॉल्यूशन ऑफ रो, सॉल्यूशन ऑफ 1 शुड बी अपडेटेड एज 2। सो दिस इज अपडेटेड एज 2, कॉलम नंबर हमने अपडेट कर दिया। उसके बाद हमें फिर से कॉल करना है एन क्यू ऑन 2,4। ओके, सेकेंड रो की हम बात कर रहे हैं। तो सेकेंड रो में फिर से केस बनेगा। सबसे पहले हमें बनेगा केस कॉलम इज इक्वल टू जब होगा 1, तो हमें सेफ कॉल करना होगा 2,1 के लिए, ठीक है। सो अब आई की वैल्यू 2 है तो फॉर लूप एक बार चलेगा। फॉर लूप एक बार चलेगा मतलब इसमें हमें एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो सॉल्यूशन ऑफ आई मतलब सॉल्यूशन ऑफ आई हमारा कितना है, सॉल्यूशन ऑफ आई है 2 इज इक्वल टू कॉलम नंबर चल रहा है 1, नो इट इज़ नॉट ट्रू, डायगोनल चेक कर लेते हैं। 1 माइनस 2 इज इक्वल टू, सॉरी 2 माइनस 1 इज देयर। सो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू आई की वैल्यू भी 1 है और रो नंबर चल रहा है आपका 2। सो ये डायगोनल में फंस गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये डायगोनल एलिमेंट है इसके, तो यहाँ पे हम नहीं से बढ़ सकते, इट विल रिटर्न फॉल्स। तो हम चेक करते हैं कॉलम इज इक्वल टू 2 के लिए सेफ फंक्शन फिर से देखेंगे हम 2,2। सो 2,2 मतलब ये वाला वैल्यू। अब इसमें फिर से हम जाएंगे तो इस बार क्योंकि सॉल्यूशन ऑफ आई 2 है और कॉलम नंबर भी 2 है तो यहाँ पे भी हमें बाउंडिंग फंक्शन मिल जाएगा। फिर कॉलम इज इक्वल टू 3 के लिए हम चेक करेंगे सेफ 2,3। सो 2,3 मीन्स दिस वन, यहाँ पे भी हमें डायगोनल मिलेगा, ठीक है। तो ये हम चेक कर सकते हैं। फिर हम जाएंगे टू सेफ कॉलम इज इक्वल टू 4 के लिए सेफ 2,4। सो 2,4 पे हमें वैल्यू मिलेगी, यस वी कैन प्लेस, क्योंकि कोई भी कोलिजन नहीं है तो हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो प्लेस करने का मतलब क्या है, ये 1 रिटर्न करेगा सेफ फंक्शन, और 1 रिटर्न करने का मतलब क्या है, हम यहाँ पे अंदर जाएंगे सॉल्यूशन ऑफ रो, रो का मतलब सॉल्यूशन ऑफ 2 पे हम अपडेट कर देंगे 4, इट इज़ ऑलरेडी अपडेटेड। सो ये ऐसे रहने देते हैं। देन उसके बाद रो इज इक्वल टू एन नहीं होगा तो एन क्यू हम फिर से कॉल करेंगे ऑन 3,4। थर्ड क्वीन के लिए हम चेक कर रहे हैं। थर्ड क्वीन के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कॉलम इज इक्वल टू 1। कॉलम इज इक्वल टू 1 में सेफ फंक्शन हम के थ्रू हम चेक करेंगे वेदर इट कैन बी प्लेस्ड ऑन 3,1। सो वेदर इट कैन बी प्लेस्ड हियर। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं, यहाँ पे प्लेस कर चुके हैं, यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं 3,1 का मतलब आई की वैल्यू रो नंबर 3 है, तो आई की वैल्यू 1 के लिए चलेगी, 2 के लिए चलेगी, 2 बार चलेगी। जब आई की वैल्यू 1 के लिए चलेगी तब सॉल्यूशन ऑफ आई में क्या है, 1 के लिए 2 एंड सॉल्यूशन कॉलम नंबर कौन सा चल रहा है 1, सो टी इज नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स हो गई। दूसरा फिर से वही आएगा 2 माइनस कॉलम नंबर 1 है, 1 माइनस रो नंबर 3 है यहाँ पे, ठीक है। रो नंबर 3 है यहाँ पे, पहले वहाँ पे रो नंबर 3 था तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो 1 के लिए दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई। 2 के लिए चेक करते हैं। 2 के लिए सॉल्यूशन ऑफ आई हो जाएगा 4,
कॉलम नंबर है 1, सो ये इक्वल नहीं है। फिर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू आई माइनस रो, आई की वैल्यू है 2 और रो की वैल्यू चल रही है रो हमारी 3, सो ये भी फॉल्स है। ठीक है, तो दोनों फॉल्स हो गए। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस दोनों 3,1 के लिए दोनों कंडीशन फॉल्स होने का मतलब है 1 रिटर्न करेगा। 1 रिटर्न करने का मतलब है आई कैन प्लेस दिस क्वीन एंड अपडेट द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ऑफ रो मतलब थर्ड रो इज इक्वल टू कॉलम नंबर एंड द कॉलम नंबर इज 1, कॉलम नंबर इज 1। सो यहाँ पे हम थर्ड क्वीन को अपडेट कर देते हैं। ठीक है, अब थर्ड क्वीन अपडेट हो गया है। सब जब थर्ड क्वीन अपडेट हो गया है तो आई कैन कॉल दी एन क्यू ऑन फोर्थ क्वीन 4,4। ठीक है, सो 4,4 में फिर से हमारे पास केसेस होंगे 4। सबसे पहले कॉलम नंबर 1 के लिए हम चेक करेंगे। कॉलम नंबर 1 के लिए हम सेफ फंक्शन फिर से कॉल कराएंगे। तो सेफ फंक्शन कॉल करेंगे। ओके, तो सेफ 4,1, 4,1 मीन्स कैन आई प्लेस ऑन दिस क्वीन हियर। सो ऑलरेडी हमारे पास सेम कॉलम में है तो यहाँ पे बाउंडिंग फंक्शन लगेगा, आप चेक कर सकते हैं। आई जस्ट राइट द वैल्यूज़ फॉर सेफ कॉलम नंबर 2 के लिए आप चेक करेंगे 4,2। 4,2 ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी क्वीन नंबर 1 प्लेस की हुई है तो यहाँ पे बाउंडिंग फंक्शन लगेगा। फिर कॉलम इज इक्वल टू 3 के लिए, 3 के लिए यहाँ पे सेफ 4,3 हम चेक करेंगे तो 4,3 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हो क्वीन को, तो 4,3 1 रिटर्न करेगा और 1 रिटर्न करते ही आपकी फोर्थ क्वीन भी प्लेस हो जाएगी। नाउ जब आपकी फोर्थ क्वीन प्लेस हो गई तो इसके बाद एन क्यू दोबारा से कॉल नहीं करेगा बिकॉज फोर लूप आपका एंड हो गया यहाँ पे, तो दोबारा से हम नीचे एन क्यू की तरफ प्रोसीड नहीं करेंगे। फॉर लास्ट उसमें जो आइट्रेशन आएगा एन क्यू का उसमें हमें प्रिंट फंक्शन के थ्रू सॉल्यूशन को प्रिंट करना होगा। ठीक है, सो अभी इसको प्रिंट फंक्शन के थ्रू प्रिंट करना होगा। एक सॉल्यूशन यहाँ पे हमारा पूरा बन चुका है बिकॉज रो इज इक्वल टू आपका हो गया है यहाँ पे एन, रो इक्वल टू हो गया है एन, और इस फॉर लूप के अंदर जाएंगे तो हमें प्रिंट करना होगा। सो प्रिंट हमें क्या क्या करना होगा, जब ये सॉरी फोर्थ वाले को भी अपडेट कर देते हैं, यहाँ फोर्थ वाला 3 हो गया। सो आई जस्ट प्रिंट दिस एरे इनटू दिस मैट्रिक्स फॉर्म। ओके, सो ये प्रिंट करने के लिए एक छोटा सा लॉजिक आप लिख सकते हैं, बड़ा आसान सा लॉजिक है। आप द कंप्लीट कोड ऑफ दिस इज अटैच्ड इन द कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन और उसका प्रिंटिंग का आप कोड देखिए, बहुत आसान कोड है और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, मुझे लगता है कि इतना ही यहीं तक करते हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ा वीडियो हो रहा है। सो इसके बाद एक अभी यहाँ पे ये टर्मिनेशन नहीं हुआ है प्रोग्राम, ये रिकर्सिव प्रोसीजर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे काम कर रहा है। जैसे ही हम ये कंप्लीट कर लेंगे हम कॉलम इज इक्वल टू 4 के लिए भी चेक करेंगे और फिर वापस से बैक ट्रैक करके इसके अदर चीज ब्रांचेस के लिए भी चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट नहीं होता है प्रोग्राम क्योंकि अभी रिकर्सन में बाकी स्टेप्स बचे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सॉल्यूशन हमारा केवल प्रिंट हुआ है, सो वन ऑफ द सॉल्यूशन इज प्रिंटेड बट अदर सॉल्यूशंस इज ऑल्सो एग्जिस्ट, क्योंकि बैक ट्रैकिंग में एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो अभी बाकी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, तो सारे के सारे सॉल्यूशन को हमें प्रिंट करना होता है। तो जब तक ये रिकर्शन पूरा कंप्लीट नहीं होता तब तक हमें इसको रन कराते जाना है। ओके, सो ठीक है, यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। बाकी अगर कोई इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो या फिर ये सब के इसके समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।